morning, student. We have already started our chapter 5, different days of life, the Vedic period from history section in our previous classes. And we have already discussed about the Vedic period from this chapter. Today we are going to cover this chapter with the discuss of later Vedic period. Today we will continue with this topic, and today we will cover our topic. Chapter, sorry. Now let's start later Vedic period. Everyone open your page number 38 and let's continue. The period between 1000 BC to 600 BC. The period between 1000 BC to 600 BC is called the later Vedic period. It is also called the epic age. It is also called the epic age because two epics, Ramayana and Mahabharata, were written during this period, and Upanishads were also written during the end of this period. Upanishads were also written during the end means 600 BC. The time period of 600 BC. During the end of this period, Upanishads also written. Epic age because the two great epics, Ramayana and Mahabharata, were written during this time. The Ramayana and Mahabharata deal with the social, political and religious aspects of life. सामाजिक, आर्थिक और राजकीय चीज़ों के बारे में वो उस पर वो फोकस करता है. The Upanishads were also written towards the end of this period, 600 BC. These philosophical texts criticize the rituals and laid stress on value of right belief and knowledge. सत्य और ज्ञान पर वो right beliefs and knowledge पे वो stress देता है, भार देता है, और rituals जो पुरानी परंपराओं को criticize करता है. They emphasized on purity of action. In the Vedas, in the Vedas, the life is divided into 4 stages called the 4 ashrams. At that time, in the later Vedic period, in the Vedas, the life is divided into 4 stages. That is called the ashrams: Brahmacharya ashram, Grihasthashram, Vanprasthashram, and Sannyasashram. Brahmacharya ashram is the being a student. In the in the Brahmacharya ashram, the life is being a student. Grihasthashram, being a householder. वानप्रस्थाश्रम, फॉरेस्ट dweller मीन्स कि वानप्रस्थाश्रम वन में जाके तपश्चर्या करना. ये इस तरह की जो एक स्टेज होता है लाइफ का, आश्रम का, उसको उस समय वो करना होता था. एंड संन्यास आश्रम मीन्स के बिल्कुल रेस्ट, आराम करने का, संन्यास ले लेने का, लाइफ की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर संन्यास ले लेने का जो स्टेज होता था. Renunciation of the stage of renunciation is the sannyas ashram. Society and culture. What type of society and culture at this time? The position of the king became stronger. राजा का जो पोजीशन था बहुत ही ज़्यादा stronger था. He assumed the titles of सम्राट and महाराजा विराज. उनको महाराजा विराज या तो सम्राट कहा जाता था. The two assemblies, the Sabha and Samiti, lost their importance. Sabha and Samiti is most important position in the early Vedic period. They lost their position in the later Vedic period. The Senani became very important as they helped the king to expand his territory. राजा को उनकी टेरिटरी एक्सपेंड करने में, बढ़ाने में जो सेनानी मदद करते थे, इसलिए उनका जो उनकी पोजीशन थी वो उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया था. Another important officer was the संग्रहित्री. एक और संग्रहित्री का जो पोस्ट होता था वो भी एक इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स में आते थे. वो कलेक्ट द टैक्सेस, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, संग्रहित्री. द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द प्रीस्ट ऑल्सो इंक्रीज्ड. प्रीस्ट मीन्स साधु महात्मा संत विद्वानों का जो पावर और प्रेस्टीज, उसकी वैल्यू और उनकी शक्ति और भी बढ़ती गई थी. Sacrifices became very important and they assumed both public and domestic character. Sacrifices involved the killing of animals on a large scale. The Brahmins claimed a monopoly of priestly knowledge and expertise. विद्वता और ज्ञान में अभी भी ब्राह्मणों की मोनोपोली थी.
मोनोपोली बढ़ती ही जा रही थी. Another important development was the division of society into 4 different वर्णस. और सामाजिक जो डेवलपमेंट था, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुआ था कि समाज को 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था. As the Varna system became rigid, there was not much scope for Sudras to rise in society. और उस वर्ण सिस्टम में शूद्र वर्ण के लोगों को उच्च स्थान, प्रॉपर स्थान नहीं दिया गया था. The Brahmins and Kshatriya became the ruling classes. रूलिंग क्लासेस में आते थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, एंड द वैश्य एंड शूद्रस द रूल. और वैश्य और शूद्र पे वो लोग रूल करते थे. द पोजीशन ऑफ वुमेन deteriorated ड्यूरिंग दिस पीरियड. स्त्री की जो पोजीशन थी वो बिगड़ती गई थी. जो एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन अर्ली वैदिक पीरियड में थी, ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक टाइम पीरियड वुमेन्स इन अ रिस्पेक्टेड सिचुएशन, बट इन दिस पीरियड women deteriorated during this period. Deteriorated means उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई. They were considered inferior to men. उनको पुरुष के अपेक्षा नीचा दिखाना शुरू हुआ. They no longer participated in meetings and were not allowed to read the Vedic literature. उनको किसी भी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था और उनको वेद वगैरह पढ़ने का भी परमिशन नहीं था. रिलीजन, कौन से धर्म को वो लोग फॉलो करते थे लेटर वैदिक पीरियड में? द 3 मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड्स वरुणा, इंद्र एंड अग्नि. ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड द मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड्स लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस इन दिस पीरियड. इन द लेटर वैदिक पीरियड दे वर रिप्लेस्ड बाय ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव. Recitation of prayers and offering of food gave way to more elaborate rituals and sacrifices. Prajapati or Brahma, the creator, came to occupy the supreme position in the later Vedic period. ब्रह्मा को सुप्रीम पोजीशन लेटर वैदिक पीरियड में उनको सुपीरियर पोजीशन ब्रह्मा को दिया गया था. विष्णु केम टू बी कंसीव्ड एज द प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल. लोगों की रक्षा करने के लिए जो स्थान वो विष्णु का स्थान बना हुआ था लोगों के रक्षक के रूप में. एंड हु नाउ लेड ए सेटल लाइफ. शिवा और रुद्र और पशुपति वॉज द गॉड ऑफ एनिमल्स. शिव जो कि रुद्र के नाम से भी जाने जाते थे, पशुपति के नाम से भी जाने जाते थे, वो गॉड ऑफ एनिमल्स के रूप में थे वो. द प्रीस्ट एंजॉयड ग्रेट पावर एंड प्रेस्टीज एंड वेर लुक्ड अपॉन एज मैसेंजर ऑफ गॉड. प्रीस्ट में साधु महात्मा जो संत लोग होते थे उनके पास बहुत विशेष रूप का पावर था और उनकी वैल्यू भी इंक्रीज हुई थी. एंड वेर लुक्ड अपॉन एज मैसेंजर ऑफ गॉड. भगवान के संदेश वाहक के रूप में उनको देखा जाता था. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड. All the later Vedic texts were compiled in the Upper Gangetic Basin during 1000 BC to 600 BC. जो वैदिक लेटर वैदिक पीरियड के जो भी बुक्स बनी हुई जो लिखी गई वो 1000 BC से 600 BC के ड्यूरिंग टाइम पीरियड में लिखी गई थी. In the same period and in the same area, merely 500 sites have been excavated. These are called painted grey ware. जो 500 sites उस समय मिली वो painted grey ware (PGW) sites के नाम से भी जाने जाते थे, because they were inhabited by people who used earthen bowls and dishes made of painted grey pottery. क्योंकि उस समय जो लोग थे वो पेंटेड ग्रे पॉटरी में पेंटिंग जो बर्तन यूज करते थे वो पेंटेड होता था, PGW जिसको कहा जाता है. दे ऑल्सो यूज आयरन वेपन्स भी वो लोग यूज करते थे. With the combined evidence from the later Vedic texts and PGW iron face archaeology, we can form an idea of life of the people during the 1000 BC to 600 BC. तो इस टाइम पीरियड का जो भी लाइफ ऑफ द पीपल था वो हमें इसकी हिस्ट्री इसके थ्रू हम गेट कर सकते हैं. हमें इंफॉर्मेशन इसके थ्रू उसका मिलता है. नाउ मेगालिथ्स. द वर्ड मेगालिथ मीन्स बिग स्टोन्स. मेगालिथ मीन्स बिग स्टोन्स. बिग स्टोन्स को मेगालिथ कहा जाता था. मेगालिथ्स हैव बीन फाउंड इन डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, इन कश्मीर. मेगालिथ्स वर परहैप्स यूज्ड टू मार्क ग्रेव्स और बेरियल साइट्स. उनका यूज नॉर्मली किस लिए किया जाता था? मार्क ग्रेव्स, जो कब्रें बनी हुई थी उस पे और बेरियल साइट्स जो होती थी उसको मार्क करने के, उसको पॉइंट आउट करने के लिए वहाँ उसी पे वो रखा जाता था. फिर उसको
उस पर इंस्क्रिप्शन किया जाता था और उसको या तो पेंट किया जाता था, उस पर लिखा जाता था। तो एक बेरियल साइट्स और ग्रेव वगैरह को मार्क करने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए उसका यूज होता था। दे वर जनरली अरेंज्ड इन ए सर्कुलर पैटर्न। In this picture you have to see in page number 40, you have to see this is the megalith generally arranged in a circular pattern. The most interesting evidence of the megalith was found at Amreli in Kathiawar. काठियावाड़ अमरेली में भी उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग एविडेंस मेगालिथ्स का मिला हुआ है। अदर इम्पोर्टेंट साइट्स वेयर एक्सकवेशन हैव टेकन प्लेस आर अडिचलूर इन तिनवेली district, Perambur and Nilgiri in Tamil Nadu. A unique site at Brahmagiri revealed a skeleton buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and a conch shell. तो इस तरह की साइट्स वहाँ पे उस समय एक्सकवेटेड हुई, मतलब खोजी गई, उसमें पाई गई। And in some areas, pots filled with ashes and charred bones have been found. Many objects have been फाउंड इन द ग्रेव्स इंक्लूडिंग पोट्री। ग्रेव्स कब्रों में भी इस तरह की जो ऑब्जेक्ट्स पाए गए। पोट्री, एग्रीकल्चर टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स। सम ऑफ द मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन इंडिकेटिंग इन फैमिली burial. तो दिस टाइप ऑफ साइट्स एंड ऑब्जेक्ट्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम पीरियड, history of later Vedic period. So students, today's our chapter is over. We will continue our next class with next chapter. Thank you.